Welcome everyone to the first episode of this new 2026 podcast, and that is called Unmute with Neha Garg. So, I want to start today's Facebook Live with wishing you a very, very happy new year. So, all my audience who were waiting for the podcast, I know that all of you know that since 2 years we have been doing the Coaches Talk Show, then you have seen me doing the Powerful Women Summit as well, and now we are resuming our podcast with a new initiative, with a new thought process as well. And with that thought, we have our first guest today. But let me check how many of you are watching this session live with me. So if you are here live with me on this particular episode, please type live in the comment. And if you are watching this episode replay, please type replay on the comments. Okay. I can see numbers increasing 1, 2, 3, 4, and we are completely live on our platform, right? Okay. So I want to start with one of the questions which is burning inside of your head. How to get leads from online platform? Is there a business owner who is watching me having this thought कि कहाँ से लीड्स आएंगे बिजनेस के लिए, कहाँ से क्लाइंट्स आएंगे, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा? आपके मन में ये सारे थॉट्स रहते हैं. If this is a burning thought in your head, this is your session, I would say. So please stay till the end. Today we are going to have a real conversation with one of the leading community owner, where she'll be sharing her insight that how you can use the power of community so that you can grow your business, get leads, visibility, and whatnot. Okay, so stay tuned. Now, I want to start with my introduction. If you don't know me, how many of you don't know me, put no in the chat box or comments if you are watching this live. Okay, so let's begin. Those of you who don't know me and those of you who know me, I'm gonna share my introduction again. So my name is Neha Garg and I'm a digital coach. I help women to grow their business online. Not I would say help, but I empower with all the resources so that she can grow her business online with clarity, confidence, and power. So with that with that introduction, I would move ahead with inviting our guest for the day. So our first episode guest, which is on theme community to client. Her name is Deepti Gupta, and she is a founder of Indian Working Women Community. She's also a busy business coach, and she is here with us to share her insights. So let's invite her and let's have a conversation with her about community to clients. So Deepti, I want to personally welcome you on our today's episode, and you can just unmute yourself and you can just come on the camera also. I'll just spotlight you. Yes. So welcome Dipti on our show. How are you? Hi Neha, first bilkul badhiya and thanks for calling me. Thank you so much for taking out the time and coming here. I know कि um, हम सभी लोग इन अ बिजनेस वी हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल एंड उसमें से फिर टाइम निकाल के थोड़ा सा, बट आई अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, ठीक है, कि हम सब लोग को सीखना चाहते हैं, लेकिन 100%. हम YouTube से सीख रहे हैं, सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, या फिर हम एक्सपर्ट से सीख रहे हैं. इन दोनों में डिफरेंस होता है. सो टुडे I have invited you to have a conversation so that those women who are struggling to grow their business, they will understand how they can use the power of community. So we will start with your introduction. आपने कैसे स्टार्ट किया और कब आपके मन में थॉट आया कि आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एंड थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड की कैसे आप Okay, में आए. got it. Hi guys, this side Deepti. Well, by profession मेरी अपनी ट्रेनिंग कंपनी है. ट्रेनिंग कंपनी जो AI, रोबोटिक्स इन सब में काम करती है. And like I have taught till now 26,000 employees from various companies like Infosys, EXL, Path Infotech, RateGain. ये सब मेरे clients हैं. So like I'm doing this work like I think it's from starting in somewhere 2000. So I'm doing this work, my training company. And I think 2016 or 17, somewhere like that. मुझे ना like I'm a travelaholic. I want to travel. So जब मैं travel कर रही थी ना तो हम like IWW बड़े सारे socializing trips करता है. मुझे बड़ी सारी females ने बोला कि दीप्ति why not to build a community कि जिसमें हम अपनी बिजनेस की ग्रोथ कर सके. सो आई जस्ट थॉट एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट नेटवर्किंग. सो आई जस्ट थॉट कि लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी. और वो धीरे 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 वो कम्युनिटी आज लाइक इट्स मोर देन 85,000. सो दैट इज समथिंग.
ग्रेट, सो इट स्टार्टेड विद द थॉट ऑफ ट्रैवल, मतलब आप ट्रैवल करते थे एंड फिर आपने स्टार्ट हाँ, कम्युनिटी ट्रैवल सेटअप। करते थे, नेटवर्क, क्योंकि देखो जब ट्रैवलिंग करते हो तो नेटवर्किंग होती है, लेकिन करेक्ट। फिर जब जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें पता चलता है फीमेल्स के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम्म। देखो बहुत सारी फीमेल्स है जो घर के बाहर नहीं जा सकती, हम्म। लाइक देर आर, उनके बच्चे छोटे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, सो उन्हें अगर काम करना है तो वो काम कैसे करेंगे? ओके। सो उन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना था, व्हाट आई गिव। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड जब आपने अपनी कम्युनिटी स्टार्ट की, लोगों को प्लेटफॉर्म देना स्टार्ट किया, तो इनिशियली व्हाट चैलेंजेस यू फेस कि मतलब स्टार्टिंग में आपने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि किस तरीके से फ्लो रखना है ताकि हर एक मेंबर को जो है सपोर्ट मिल सके कम्युनिटी में। तो ऐसे कोई चैलेंजेस जो आपने फेस किए और आप सबसे शेयर करना चाहोगे? देखो सबसे पहला और मेजर चैलेंज इज पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइमिंग। हम्म। हम सभी के साथ, वेदर आई वोंट से मेल और फीमेल, इट्स विद इंडियंस, दैट इज वन नोशन व्हाट वी हैड, और वो काफी हद तक सही भी है। हम सब सारे जने पंक्चुअल नहीं होते हैं। हम्म। अगर मैंने एक मीटअप का टाइम रखा है 11 बजे, स्टार्टिंग में मेरे पास तो सबसे बड़ा चैलेंज था, अगर मैं 11 बजे का टाइम दे रही हूँ, फीमेल्स आर कमिंग टिल 12। ओ। लेकिन अगर मैंने एक जगह बुक करी है, मेरे को तो वेन्यू का चार्ज देना पड़ रहा है, हम्म। एंड दैट इज टिल 1:30 2 o'clock। हम्म। लेकिन हमारा तो जो एजेंडा था मीटअप का वो खत्म ही नहीं हुआ। करेक्ट। सो फर्स्ट चैलेंज व्हाट आई फेस, दैट वाज द पंक्चुअलिटी। देन सेकंड चैलेंज व्हाट आई फेस्ड वाज टू सर्च आउट पीपल जो लाइक माइंडेड हो। हम्म। To search people is very difficult. So these were the two major challenges what I faced out. यस, एंड वेरी ट्रू, पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज Yes. इन अ ग्रुप सेशन जब आप चार लोगों को बुला रहे हो और उनके साथ में कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई किसी टाइम आ रहा है, कोई किसी टाइम आ रहा है, तो उसको स्टार्ट कब करें, एंड कब करें, एंड बाद में फिर फील होता है कि हमारा तो एंड नहीं दिस आया। इज एंड दिस इज द रीजन, सबको पता है कि IWW अगर 11 बजे उसने टाइम दिया है, वो 11 बजे शुरू कर देगा, आप आओ या नहीं आओ। करेक्ट। सो इसलिए हमारा हर इवेंट टाइम पे स्टार्ट होता है, टाइम पे खत्म होता है, इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग ट्रिप्स। इसलिए हम टाइम के अकॉर्डिंग आइटनरीज देते हैं। करेक्ट करेक्ट। एंड जैसे आपने इस कम्युनिटी को बिल्ड किया, काफी सारे बिजनेस ओनर्स ने आपको कनेक्ट किया होगा और उन्होंने अपने अपने चैलेंजेस बताए होंगे, तो विमेन में आपने क्या ऐसा चैलेंज देखा जिसकी वजह से उनको पता है कि उनको अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, लेकिन कहीं पर फिर भी वो उस तरीके से लाइक टू पीपल पार्ट ऑफ सेम ग्रुप बट डू नॉट ग्रो इन अ सेम स्पीड, सो क्या हो? See, I will tell you, there are two things. हम्म। First of all, women need to understand one thing. Each and every woman, हम्म। either whether it's you, whether it's me, हर women का अपना पेस है काम करने का। हम्म। हो सकता है हम आप और मैं सपोज दोनों सेम प्रोफेशन में हो, लेकिन आप 18 घंटे काम कर सकते होंगे, मैं सिर्फ 6 घंटे काम को दे पा रही हूँ। सो आप और मैं एक ही लेवल पे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ट्रू। पेस अपना है ना, आपका अपना है, मेरा अपना है। हम्म। दिस इज सेकेंड, वुमेन हैव, जो उन्हें पता है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन उनके पास थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम है बिजनेसेस को लेके। जबकि वी पीपल आर वेरी मच पेशेंट, हम बहुत पेशेंट हैं। यस। हर चीज में वी आर लाइक माइंड ब्लोइंग पेशेंस है, वो बच्चों के साथ हो, फैमिलीज के साथ हो। लेकिन जहां बात आती है हमारे बिजनेसेस की, हम थोड़े से पेशेंस खो देते हैं। हमें लगता है हमने अगर एक कम्युनिटी ज्वाइन करी या हमने आज एक पोस्टिंग करी, आज ही सेल हो जाए, ऐसे कैसे होगा? ट्रू। अग्री। नहीं हो सकता। अगर आपने देखा होगा, आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। सोशल मीडिया, बिकॉज पीपल हैव अ मिथ, अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस देयर वाज नो फेसबुक। उस टाइम पे कोई व्हाट्सएप नहीं था। आई मीन इन 2000 कोई फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं था। तब भी बिजनेसेस चल रहे थे। हम्म। बिजनेसेस कैसे चलते थे? कनेक्शन से चलते थे। बिल्कुल। आज भी वही सिनारियो है। यू नीड टू बिल्ड कनेक्शंस। आई थिंक द मोर यू आर, so women need to understand one thing, they need to build connections। क्योंकि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आज मैंने किसी कस्टमर को कुछ दे दिया तो दोबारा वो लौट के ही नहीं आए मेरे पास। ट्रू। एंड काफी सारी टाइम हम लोग कंटेंट पे डिपेंड हो जाते हैं कि सोशल मीडिया यस, कर ही दिया है तो वहां से सेल आई जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, हमें कनेक्शंस बनाने हैं। सो आई यस। ऑलवेज से, टू बी इन द कम्युनिटी यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आप कर। जितने ज्यादा कनेक्शंस बनाओगे, पीपल विल नो यू। जैसे अभी आई थिंक अभी हाफ एन आवर बैक आई वाज टेकिंग अप अ सेशन जिसमें आप भी थे। मैंने यस। उसमें एक पॉइंट बोला था अथॉरिटी विजिबिलिटी का, यस। कि गाइस अथॉरिटी लेना सीखो, बताओ कि हम हैं।
The ट्रू time you take the authority, people will come after you. ट्रू एंड अगर जैसे obviously every woman wants to grow her business, okay, and the she is facing challenges. Now the Hmm. problem comes is start कहाँ से करें और फिर उसको कंटिन्यू कैसे करें। जैसे आज आपने विजिबिलिटी पे सेशन लिया तो Hmm. सब विजिबिलिटी के बारे में बहुत कुछ समझ में आया, तो भी इम्पेशंस वाली प्रॉब्लम आती है कि हाँ हाँ, yes. हम पॉइंटर्स तो हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी Hmm. इसकी सेल हो रही है मेरी सेल नहीं हो रही है, या फिर इसका बिजनेस बढ़ रहा है मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। सो क्या आप ये तीन स्टेप लोगों को बताना चाहोगे, लाइक जो भी वुमेन अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है एंड Okay. स्पेशली कम्युनिटी के थ्रू ग्रो करना चाहती है, तो ये वो तीन स्टेप्स को याद याद रखे और अपना बिजनेस ग्रो कर पाए। गाइस देखो, अगर आप एक कम्युनिटी में हो, सबसे पहले आई विल ऑलवेज से ऑनलाइन या ऑफलाइन मेक श्योर आप लोग नेटवर्किंग मीट्स जरूर अटेंड कर रहे हो। घर के बाहर नहीं आ सकते, कम्युनिटीज में ऑनलाइन मीट्स हो रही हैं, अटेंड करो। बाहर निकल सकते हो, ऑफलाइन मीट्स, जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट आईडब्ल्यू साल में 55 इवेंट्स करता है। ओके ये कैसे पॉसिबल है कि आप 55 में से एक भी इवेंट को अटेंड नहीं कर पाओ? जैसे सपोज नेहा, अभी मैं जो जीके में मीट कर रही हूँ, आप आगरा से आ रहे हो अटेंड करने। सो वंस यू आर कमिंग फ्रॉम आगरा, यू आर टेकिंग अप अ स्टेप कि मैं घर के बाहर निकलूं। यस यू विल बी मीटिंग 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ओवर देयर। वो 100 के 100 आपके क्लाइंट हो सकते हैं, लेकिन वो बनेंगे कब? जब आप उनसे कनेक्ट बनाओगे। यस देयर इज अ वेरी सेइंग कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो पहले दिखोगे तभी तो बिकोगे। ट्रू सो दिस इज वन थिंग, मीट जरूर अटेंड कीजिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सेकेंड, आपका कोई भी कॉम्पिटिटर है, उससे कॉम्पिटिटर की तरह मत लो। यू नीड टू सी वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपने एक आरडब्ल्यूए देखा है? आरडब्ल्यूए में शॉप्स होती हैं, हाँ मतलब मार्केट जो होती है। यस यस 4 शॉप्स आर देयर, चारों शॉप सेम सामान बेच रही हैं। हाँ एक शॉप पे लाइक बहुत सेल हो रही है, 3 खाली हैं, ऐसा क्यों है? कस्टमर आने वाला सेम है, करेक्ट लोकेशन सेम है, करेक्ट कोई स्ट्रैटेजी तो होगी। जो यस उसके पास ज्यादा सेल है और आपके पास वो सेल नहीं है। ट्रू सो ऑलवेज फॉलो योर कॉम्पिटिटर, ऑलवेज पता करो, देखो वो क्या चीज लेकर आ रहा है। माइट बी, सपोज आई गिव एन एग्जांपल, अभी गर्मी का जैसे सीजन आएगा, हम्म हो सकता है आप उस तरीके के नए फैशन के कपड़े ही ना ला रहे हो। हाँ वो नए फैशन के कपड़े लेकर आ रहा हो सेल करने के लिए, और हम्म आप सोच रहे हो कि उसकी सेल हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। ट्रू सो सेकंड इज यू नीड टू चेक द स्ट्रैटेजी। ओके वो आपके कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। थर्ड थर्ड आता है आपकी विजिबिलिटी। हम्म सपोज आई गिव एन एग्जांपल, देयर इज अ होम्योपैथ डॉक्टर। हम्म मैं जैसे अपने मीट्स करती हूँ, अभी भी जैसे मैं जीके में मीट करने वाली हूँ। सो हमारा एक बहुत कॉमन है कि आई प्ले गेम्स ओवर देयर, ओके कि मैं गेम्स खिलाती हूँ विजिबिलिटी के ऊपर। कि हम्म सपोज अगर हम 20 जने हैं, 20 में से देखो पहले तुम्हारा नाम कितनों को पता है। हम्म अगर ये छोटी सी 20 जनता जो तुम्हारी कम्युनिटी का पार्ट है, यही तुम्हें नहीं जानती, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वर्ल्ड टू नो अबाउट यू? करेक्ट सो इट्स अ विजिबिलिटी। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, आई थिंक व्हाट डू वी से, प्यूमा इज, टेक अ ब्रांड प्यूमा, यस प्यूमा और रिबॉक। मुझे नहीं लगता नेहा आपको या मुझे, हम दो में से किसी को भी पता है प्यूमा या रिबॉक का ओनर कौन है। ऑनेस्टली नहीं पता ट्रू लेकिन एक 5 साल के बच्चे को पता है प्यूमा क्या बेच रहा है। हाँ सो दैट इज अ विजिबिलिटी। यस ट्रू सो ऑल थ्री विच यस। दीप्ति सेड कि आपका कनेक्शन, आपके स्ट्रैटेजी और आपकी विजिबिलिटी, ये तीनों चीज मैटर करती है। एंड पर्सनली इट्स लाइक एज अ डिजिटल कोच, इवन आई वर्क विद वुमेन, सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप सोशल मीडिया की पोस्टिंग से ज्यादा अपने कनेक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि आपके कनेक्शन जो आपके लिए ऑफलाइन काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट एवरी वुमेन से कि ऑफलाइन तो बहुत अच्छा चलता है, ऑनलाइन ऑनलाइन अच्छा नहीं चलता। हाँ उसमें जाके प्रॉब्लम आती है। तो वो इसलिए हम्म। प्रॉब्लम आती है कि जो कनेक्शन हमने ऑफलाइन बनाया उसको हम ऑनलाइन शायद नहीं ले गए, या ले गए तो हमने उसको स्ट्रेंथन नहीं किया, जिसमें आपका सेकंड ट्रू। पार्ट आ जाता है स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी। विजिबिलिटी। राइट। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे विमेन जो है अपने अपने भी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ये सब बनाते हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट how other communities are growing and they also want to grow their own community, but हम्म। also agree that community is all about leadership, कि वहां पे हम्म। आपको अपनी ओनरशिप प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो व्हाट डू यू थिंक द ओनरशिप क्वालिटी यू कैन रेकमेंड टू अ women
So that if she is having a group, she can also. No, I never suggest that. I will tell you the reason. The Hmm. reason behind that, suppose आप assume करो, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले चेक करो तुम्हें प्रमोट क्या करना है, तुम्हें कम्युनिटी प्रमोट करनी है या अपना बिजनेस प्रमोट करना है. Okay. सपोज आई से देयर इज वन पर्सन ए का अपना बिजनेस है टॉवल्स का. Hmm. ए ने कम्युनिटी साथ में बना ली. Hmm. अब वो कह रही है मैं कम्युनिटी को भी प्रमोट करूंगी, मेरा बिजनेस भी चलेगा. Hmm. आप पॉइंट समझना, Hmm. ये कम्युनिटी कभी भी रन नहीं करेगी. Okay. रीजन, सबसे पहले तो वो इस कम्युनिटी के साथ फेथफुल हो ही नहीं सकते. Okay. उसका रीजन है, सपोज इस कम्युनिटी में कोई भी हैंडलूम का बंदा आता है, Hmm. अगर एडमिन बोल रहा है, बाकी लोग उस इंसान से परचेजिंग करेंगे या एडमिन से करेंगे? Might be कि उस हिसाब से करे. नो, वो एडमिन से करेंगे. आई कैन गारंटी दैट. Okay. अगर एडमिन भी उसी बिजनेस में है तो, अच्छा. हाँ, अगर दोनों मतलब सेम इफ बिजनेस में है. दोनों अगर सेम बिजनेस में है हाँ. तो लोग किसके पास जाएंगे? एडमिन के पास जाएंगे. करेक्ट. दैट मीन्स आप अपनी कम्युनिटी में खुद ही बायस्ड हो गए. यस. ट्रू. सो आपने तो कम्युनिटी में बायस पहले ही स्टार्ट कर दिया. हम्म. हाउ कैन यू रन अ कम्युनिटी? ट्रू. सो सी, इफ नाउ अगर इस ए के पास यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, शी सेइंग कि मुझे कम्युनिटी ही बनानी है, कम्युनिटी को ही चलाना है, देन मोस्ट वेलकम. ओके. लेकिन आपके पास कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए. हम्म. लाइक सपोज आई गिव एन एग्जांपल, IWW बहुत सारे ट्रैवलिंग ट्रिप्स करता है, हम्म. लेकिन IWW खुद ट्रैवल एजेंट नहीं है. ओके. मेरे इतने सारे मेंबर्स हैं, उनमें से ही कोई ना कोई मेरे लिए ट्रैवलिंग ट्रिप प्लान कर रहा है. ओके. उनको मैंने बिजनेस दिया, हम्म. उन्हें बिजनेस मिला, मैं सिर्फ जरिया हूं. हम्म. आई एम गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज हाउ यू नीड टू ग्रो अ कम्युनिटी. करेक्ट. सो यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे भी समझ में आया और मैं सबको भी क्लियर करना चाहती हूँ. इट्स लाइक बहुत सारे लोग जो सर्विसेज इंडस्ट्री में होते हैं वो लोग अपनी कम्युनिटीज बिल्ड करते हैं क्योंकि कम्युनिटीज में वो लोगों को सिखा सकते हैं और फिर उनमें से जो लोग क्लाइंट बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि किसके पास में कैसा बिजनेस है. सो सपोज एज अ डिजिटल कोच आई डोंट गिव डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज. आई ओनली कोच पीपल. So that's why when I'm building my community, from there I can select somebody who can give digital marketing services. That's the point यस, you shared, या right? 100%. यस. जैसे यहाँ आप पे. डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं दे रहे हो, Yes. लेकिन आप अपनी कम्युनिटी से लोगों को हेल्प कर सकते हो. Yes. बिकॉज यू आर डूइंग अ कोचिंग इन डिजिटल मार्केटिंग. Yes. क्योंकि अगर सपोज एज्यूम करो आप कोच भी हो, आप सर्विसेज भी दे रहे हो, कोई भी कोच आपके कोई भी सर्विस जो जिसका डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस है, वो आपको क्यों ज्वाइन करेगा? आप तो उसके लिए कॉम्पिटिटर हो गए ना. करेक्ट. एंड यहाँ पे फिर कम्युनिटी बिल्ड करने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अगर आप. क्योंकि आप दोनों कामों के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते. ट्रू. एंड दिस इज द पॉइंट. जो भी लोग फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो ना और आपके पास प्रोडक्ट बिजनेस है या फिर सर्विस बिजनेस है, अगर आप उन लोगों को कम्युनिटी बना रहे हो और वहीं पर ही उनको सेल कर रहे हो और वहीं पे ही आपके कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं, तो वो कम्युनिटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो वो सिर्फ. नहीं बन पाएगी, वो चलेगी ही नहीं. उसका रीजन है बिकॉज यू आर बायस्ड इन दैट केस. हम्म. आप जब खुद बायस्ड हो गए, आप जनता को कैसे? अभी आई थिंक अभी आपने मेरे सेशन में एक ही पॉइंट सुना होगा. अभी व्हेन आई वाज टेकिंग अप द सेशन, मैंने एक ही चीज बोली थी कि मैं पर्सनली किसी को नहीं पढ़ाऊंगी. ओके. यू आर अ कोच, यू कैन. हम्म. ठीक है, आई एम अ कोच बट आई एम इनटू कॉर्पोरेट्स. हम्म. मैं पर्सनली, हाँ, आई कैन हेल्प यू आउट. कि मैंने हमारे जो मेंबर्स हैं उनको मैंने बता दिया गाइस दिस इज थिंग. अब मैं क्या करती हूँ, वरना कभी भी कोई भी कम्युनिटी लीडर अगर खुद वो कोच है, वो किसी भी और कोच को नहीं आने देता. लेकिन आई ऑलवेज कि नेहा यू आर अ कोच, यू टेक दिस टॉपिक, और अनुपमा यू आर अ कोच, यू टेक दिस टॉपिक. क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप सारे ग्रो करो, बिकॉज यू पीपल आर गोइंग टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम देयर, और मुझे यहाँ से क्लाइंट्स नहीं चाहिए. ट्रू. So this is a major difference. So everyone needs to notice this particular point. See what you are offering.
यहाँ पे जहाँ तक मुझे Yes, समझ में आया कि आप क्या ऑफर कर रहे हो उसके बिहाफ पर ही आपके नेक्स्ट स्टेप डिफाइन होते हैं कि आप किस तरीके से कर correct. सकते हो, राइट? Yes, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, जैसे कम्युनिटी में कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ एक का बिजनेस ग्रो हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा, और कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग इसके बिजनेस को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इट्स लाइक सपोज एडमिन यूज समबडीज प्रोडक्ट, ओके, सो आपको अगर किसी आपने किसी का प्रोडक्ट यूज किया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन दिया, उसको सपोर्ट किया और उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, दूसरे को लग रहा है कि नहीं मेरा बिजनेस तो ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों को ना एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है अपने कंटेंट रिलेटेड फीडबैक, अपने प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड फीडबैक, कि उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। hmm. तो लोग अपने आप अपने जो भी फीडबैक अपने लिए लेते हैं उसको पॉजिटिवली कैसे लें, इस लाइक क्योंकि आपने कॉर्पोरेट में काम किया है तो आपने सिखाया होगा, तो लोगों को उनकी कमियां बताना और उनको बुरा ना लगे इस तरीके से बताना ताकि वो उस पर काम कर सके। तो किसी भी Okay. बिजनेस वुमेन को अगर बिजनेस इंप्रूव करना है तो ऑब्वियसली शी हैज टू टेक फीडबैक्स, सो हाउ टू टेक पॉजिटिवली एंड हाउ टू वर्क ऑन हरसेल्फ। सी अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि गाइज, अगर जैसे सपोज एक एग्जांपल, अभी वी हैड अ मीटअप इन द्वारका, हम्म। एंड वन ऑफ माय मेंबर शी जस्ट गेव मी वन फेस वॉश कि मैम आप यूज करके बताना। आई रियली लव्ड हर फेस वॉश, और मैंने उसे वापस कॉल किया, मैं कहा यू आर कमिंग, गेट सैंपल ऑफ दोज फेस वॉशेस, हम्म। सबके लिए लेकर आओ, टेक द फीडबैक ऑन 18। और उसका फेसबुक, आई थिंक शी गॉट नियर अबाउट 18 सैंपल्स, हम्म। उसमें से 14 जनों को पसंद आया, द वन हु विल बी बाइंग ऑन 18th फ्रॉम हर। ओके। सो नाउ फीडबैक आप ही ले सकते हो, हम्म। उसको देखो, ये इट डिपेंड्स ऑन यू, जितना पॉजिटिव लोगे उतना जल्दी यू विल ग्रो, हम्म। जितना नेगेटिव लोगे कि मैं अपना फीडबैक, कोई मुझे बोल दे कि दीप्ति आपको ये चीज, आई एम तो ऑलवेज ओके, आओ गाइस बताओ क्या दिक्कत है, लेट्स सॉल्व। गाइस वी हैव टू बी यूनाइटेड हम्म। फॉर सॉल्विंग। अभी मैंने सेशन में यही बताया कि तुम सबने देखा होगा, जब मैं मीटअप करती हूँ, लाइक अभी भी जैसे मीटअप होगा, इट्स विद 100 पीपल, 100 हम्म। बंदों को अकेले मैं भी नहीं संभाल सकती। हम्म। ट्रू। आई विल टेल कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। हम्म। सो लेकिन वो एक कंबाइंड यूनिटी होगी तभी आप कर पाओगे सामने, क्योंकि देखो कहीं पे हम भी गलत होंगे, कहीं आप भी गलत होगे। हम्म। सो इट्स ऑलवेज टू टॉक एंड चैटर आउट कि गाइस प्रॉब्लम कहाँ है। हम्म। और मुझे लगता है बहुत सारी women हैव स्टार्टेड टेकिंग अप दिस यस। काइंड ऑफ पॉजिटिविटी। यस, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टुक दिस पॉइंट कि अगर आप लोग अपने लिए फीडबैक नहीं ले रहे हो और आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो लो, और आप जब लर्निंग सेशन अटेंड करते हो एंड फ्रॉम देयर आल्सो यू अंडरस्टैंड कि ये करना चाहिए करना चाहिए, देन यू टेक एक्शन। या फीडबैक आपने लिया एंड उस पर फिर आपने एक्शन लिया एंड उसके बाद में आपने अपने रिजल्ट को रिफ्लेक्ट किया तो उससे पता चलता ट्रू। है। So thank you so much, Deepti. It was a nice conversation. Before we थैंक end, यू। one last message for any women business owner who is watching you. आप कुछ भी कहना चाहोगे जिससे वो नॉट ओनली यूजिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी 3 स्टेप में बता दिया जो भी हम्म। आपने स्टेप बताए, बट कोई भी एक मैसेज आप देना चाहोगे कि women अपने सी बिजनेस। इट्स, आई वोंट से दैट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, आई विल से दैट फॉर एवरी women। यस। इंडियन वर्किंग वुमेन की एक टैगलाइन है, मुझसे लोग पूछते थे दीप्ति इसका नाम इंडियन वर्किंग वुमेन है, हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या? एंड आई ऑलवेज से एवरी वुमेन इज अ वर्किंग वुमेन, देयर आर ओनली फ्यू जो घर सैलरीज लेके जा रही हैं। तो जो घर पे काम कर रहा है ना, वेदर योर मॉम, वेदर योर सिस्टर, वेदर योर वाइफ, एनी वन, शी इज अ वर्किंग वुमेन। And believe me, any entrepreneur or not an entrepreneur, the day they start putting themselves in each other's shoes ना, women का struggle समझ आने लग जाएगा लोगों को। ट्रू। So that is the only thing, because हम as a women we have lot many challenges। किसी का बच्चा छोटा है, किसी का बच्चा बड़ा है, किसी के घर पे प्रॉब्लम्स हैं, कोई किसी के पास जॉब में इश्यूज, आई मीन देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स, हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं। सो आई थिंक एज अ वुमेन वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट। True, and thank you so much for this powerful message. So, here, what I understood for every women business owner is
रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनल सिचुएशन। आज आप क्या फील कर रहे हो, आपकी यस, सिचुएशन है, आपके पास में रिसोर्सेस हैं, यू जस्ट नीड समबडी टू गिव योर हैंड होल्डिंग सपोर्ट। सो दीप्ति की अपनी एक पर्सनल कम्युनिटी है जहाँ पे वो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप इनसे सपोर्ट ले सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। एक एक लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगी, एक्शन हमें ही लेना है, राइट? सो विद दैट 100%. note, and whoever watch today's session, please share your takeaways. We would love to hear from you. And Dipti, thank you so much for coming to this. Thank you. Thanks, Neha, for like hosting me, first of all. Thank you. Thank you so Thanks a much. lot. Yes. Thank you. So we Okay. will see you later on in the next episode. I'll just end with a note. Let me just spotlight myself. Second. Yes. All right. So thank you so much, everyone, for watching today's episode. Please share your takeaways. And if there is anything which you would like to share or touched your heart, you can just, share this episode on your Insta, Facebook story, tag us. And if anything, there is any feedback for us, please share with us. And do let us know which next guest you want on our episode. With that note, this is Neha Garg signing off from today's episode. Take care. Bye bye.